So it is exactly 11:30. Good morning, friends. Hello and welcome back. I, Nirav Gohel, on behalf of BNI Online, would like to welcome you all in this interesting interactive web meeting. You all know CA Hiren Thakkar very well, but for the new joiners, I would repeat his brief introduction. CA Hiren Thakkar is a veteran professional and he is a practicing CA since past 21 years. He is the founder partner of HTA and Associates. His firm is having headquarters in Rajkot and having branches at Ahmedabad, Surat and Morbi. I would like to remind all of you that on 9th April 2020, you enjoyed Hiren sir's speech on income tax rate. To complete the chain, we are here with live questions and answers on the same topic, income tax rate. We have divided this session in two segments: question from the previous meeting and questions from this meeting. So I request all the participants present to write any question regarding income tax rate in the chat box. એટલે જે લોકો અત્યારે એમને કઈ ક્વેશ્ચન હોય એ ચેટ બોક્સમાં ખાસ લખજો. એટલે પેલું સેગમેન્ટમાં લાસ્ટ જે મીટિંગ હતી એમાંથી જે પ્રશ્નો અમને મળ્યા છે એ પ્રશ્નો ઉપર આપણે ફોકસ કરશું અને એના પછી જે અત્યારે પ્રશ્નો મળે છે એના ઉપર ફોકસ કરશું. So without wasting much time, I would like to welcome and invite Sir to this live forum. Welcome, Hiren sir. Yes, good morning to all of you. Thanks for your participation and I welcome you all. First of all, I would like to thank our BNI platform and Executive Director Sri Kashyap Chotai and our support director Sri Premal Bhai Mehta of BNI Utkarsh. I would like to thank my friends Ketan Bhai Parekh from GV Jewellers, Kanabai, and Vijay Bhai Suru from Pina Jewellers. I would also like to thank Sri Mayur Bhai Ardeshna from Rajkot Gems and Jewellery Association. Thank you for your kind support. Friends, before start, I would like to have some instruction. Friends, this is just informative seminar only. So do not take it as firm advice because जब भी हम कहीं पर फाइनल एडवाइस करते हैं तो उसके लिए पूरा अध्ययन करना पड़ता है. तो सिर्फ एक बात के लिए या जो भी मैंने अभी बोला, विदाउट नोइंग ऑल द सर्कमस्टेंसेस आई कैन नॉट गिव एनी एडवाइस. तो ये एक सिर्फ इंफॉर्मेटिव सेशन है, तो प्लीज टेक इट एज दैट वे. दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है, ये हम कभी टैक्स इवेजन को इनकरेज नहीं करते और जो भी एडवाइस कभी नहीं करते. तो जो भी हम यहाँ से बोलते हैं कि जो भी एडवाइस करते हैं तो प्लीज टेक इट, नॉट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि ना मतलब हम जो भी बोलते हैं तो उसका आप अपनी ओर से अर्थघटन मत कीजिएगा. Yes, friends, let's Nirubhai start on the topic. Okay, great sir, great. So sir, our first session will be जो लास्ट हमें सेशन था हमारा और उसमें से हमें जो क्वेश्चंस मिले थे उनमें से we have selected few of them. So yes, and also we have received many new questions, but yes, that is similar to the old one, or we can say this is the compilation of all the frequently asked questions. Yes, yes, yes. तो सर पहले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. सर पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, अगर रेड आ ही जाती है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? Just a minute, please. Yes, हेलो भाई. ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि रेड ना आए इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. तो विच आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन, पर फिर भी रेड आ ही जाती है तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है. मतलब थियोरेटिकली तो वी कैन से कि जो भी अपनी ड्यूटीज है वो हमें निभानी है और राइट्स जो है वी कैन वो कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं. बट प्रैक्टिकली टेलिंग उसमें आपको ये सबसे ख्याल रखना है कि जब भी रेड आती है तो आपको एक कोई जैसे सबके पास एक या दो ऐसे एडवाइजर्स होते हैं या
वेल विशर्स होता है जी सर। कि जिसके पास से वो वो हमें इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ गाइड कर सकते हैं, या एटलीस्ट हमें एटलीस्ट बाहर से रह के हमें हेल्प कर सकते हैं। जी सर। एक ऐसी बात तो है कि जो भी सिर्फ वेल विशर होने के कारण इनकम टैक्स वाले उसे अंदर नहीं आने देंगे, पर वो बाहर रह के भी हमें हेल्प कर सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज करनी होगी, एक सिस्टम बिठानी होगी कि जब भी ऐसी कोई अनयूजुअल सिचुएशन आए तो हम उसे कैसे न कैसे करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। जी। बाकी का वो संभाल लेंगे, या फिर आपके सीए को बुला लेंगे, आपके अकाउंटेंट को बुला लेंगे, या आपके साथ जो भी जुड़े हुए हैं जिसके भी साथ उसे बातचीत करने की जरूरत होती है वो उसे बातचीत कर ले। तो मतलब एक तो पहले आप अपने ये वेलविशर या एडवाइजर को आप हमेशा साथ में लेके चलिए, आपके ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताते रहिए। जी। एंड सेकंडली उसे भी ये मालूम होना चाहिए कि मुझे कहाँ कहाँ ये सब इन्फॉर्म करना है। तो जी। ये ऐसे हो सकता है। बाकी तो जैसे हमने ड्यूटीज करनी है, उसे अंदर आने देना है, उसके आई कार्ड चेक करने हैं, वारंट देखना है, वो तो सब हम करेंगे ही करेंगे। और वो भी जैसे उसको अलाउड करना है, उसे अंदर आने देना है, सर्च करने देना है, वो सब तो करना ही है। पर ये प्रैक्टिकली टेलिंग ये सबसे पहले कर लेना चाहिए, आपको एक सिस्टम बैठा देनी चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। ओके। यस ग्रेट सर। यस। थैंक यू वेरी मच सर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड सर कहाँ कहाँ हो सकती है? हाँ, मैंने लास्ट टाइम वैसे डिस्क्राइब किया था, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात ठीक से मैंने समझा नहीं पाया, तो फिर से मैं एलोबरेट करता हूँ कि रेड किसी भी जगह पर हो सकती है। मतलब कि मोस्टली क्वेश्चन ये थे कि क्या वो हमारे एम्प्लॉय के घर में आ सकते हैं, क्या वो हमारे सीए के ऑफिस पे जा सकते हैं, क्या वो अकाउंटेंट के घर पे जा सकते हैं। तो एक सिंपल सा जवाब दूं कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू उसके पास एक रीजन टू बिलीव हो कि आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। अगर उसे लगता है कि आपकी इंफॉर्मेशन आपके अकाउंटेंट के पास है, उसे लगता है कि आपके कुछ वैल्यूएबल्स आपके ये पार्टनर्स के पास पड़े हैं, जी सर। तो या कुछ आपकी ऐसी चीज है या बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपके एम्प्लॉय के घर में छुपाए हैं, जी सो सर। दे कैन गो ईच एंड एवरी प्लेस। और मोस्टली ये लोग प्रिपेयर्ड होके ही आते हैं। तो उसे क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि वो लोग एक होमवर्क करते हैं जो 2 महीने से लेके एटलीस्ट 1 साल तक चलता है, जी फिर सर। जाके कहीं पे रेड होती है, तो उसे कहीं ना कहीं सब कुछ मालूम होता ही है कि यहाँ पर वो जा सकते हैं। और जी दूसरा कि सर। जैसे मैं बता रहा था कि अगर किसी ने मतलब उसको पता नहीं है कि ये एम्प्लॉय के घर में ये है, पर अगर हमने ये बताया कि ये सो एंड सो बुक्स आर लाइंग विद दैट अकाउंटेंट, या फिर ये चीजें तो हमारे इस व्यक्ति के यहाँ पर पड़ी हुई है, जी तो सर। अगर उसके पास सर्च वारंट नहीं है तो उसका सर्च वारंट वो इमीडिएटली बना के वहाँ जा सकते हैं। मतलब हाँ, प्रोसीजरल उसे फॉलो करनी होती है, ऐसा नहीं है कि सीधा उसके घर पे जाके पटकते हैं, पर वो इमीडिएटली वो सब पेपर तो वो अरेंज कर लेते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो जी मतलब सर। प्रैक्टिकली टेलिंग दे कैन गो एनीवेयर एनीवेयर। और दूसरा भी एक मुझे क्वेश्चन याद है, उसमें किसी ने पूछा था कि अगर आपके बाहर पड़ी हुई गाड़ी में या स्कूटर की डिक्की में कोई पेपर्स पड़े हैं तो कैन दे से, मतलब वो क्या वो ले सकते हैं? तो हाँ, जी सर। वो भी वो ले सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये आपकी प्रीमाइसेस के अंदर ही पड़ी है, और अगर कहीं बाहर भी पड़ी है तो भी दे कैन अरेंज वारंट एंड दे कैन टेक टेक दिस पेपर इनटू देयर कस्टडी। ओके तो सर। मतलब ये उसके लिए बहुत आसान सी बात है। हाँ, उसे बस पता लगना चाहिए कि ये चीजें यहाँ पर पड़ी है, तो जी। दे कैन डेफिनेटली दे कैन। ओके। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। कैन दे क्लोज सीसीटीवी कैमरा? क्या वो अपने सीसीटीवी कैमरा बंद कर सकते हैं? एक जनरल क्वेरी थी कि क्या वो सीसीटीवी कैमरास बंद कर सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, ये लोग आके ही बंद कर लेते हैं और हर जगह पर ये रहता ही है। हम लीगल राइट्स की बात करें तो कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है कि क्या वो सीसीटीवी कैमरा बंद कर सकते हैं, जी। पर लुकिंग टू द ब्रॉड राइट्स, उसके पास जो ब्रॉड राइट्स है, और जैसे ही वो कहीं पर रेड के लिए आ जाते हैं जी। तो उसके उस जगह के कंट्रोलिंग सिचुएशन में कहेंगे कि वो रहते हैं, जी। तो फिर हम कंट्रोलिंग सिचुएशन में नहीं रहते हैं। कि ओके। क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब वही ऑथोराइज ऑफिसर ही डिसाइड करता है। तो ये उसके पावर में ही है, तो वो करते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, कैन दे अलाउ मोबाइल यूसेज? वो मोबाइल का यूज अलाउ करते हैं कि नहीं? सीसीटीवी कैमरा जैसे मैंने बताया वही रूल इसमें भी लागू होता है। जी जो भी आईटी लोग थे उसके लिए ऑथराइज ऑफिसर के लिए एक मैनुअल फॉलो करना होता है। जी तो उसमें भी ये लिखा है कि फॉर सर्टेन इनिशियल आवर्स they have to take the mobiles and switch off it, या फिर चालू रखते तो अपनी कस्टडी में रखते हैं। जी तो मतलब ये हुआ कि वो लोग मोबाइल्स ले सकते हैं, बंद भी कर देते हैं या फिर अपनी कस्टडी में रखते हैं। हाँ, फिर हमें किसी को बुलाना है या कोई अर्जेंसी है तो वो हमें कॉल करने देते हैं, बट एवरीथिंग डिपेंड्स उसके ऊपर रहता है। जी उसके ऊपर रहता है कि वो हमें अलाउड करे ना करे, ओके पर हम उसके डिस्क्रिप्शन पर रहता है। मोस्टली वो क्या करते हैं कि जितने इंपॉर्टेंट कॉल होते हैं वो करने देते हैं, या किसी के इन कॉल्स आते हैं जी तो शुरू के आवर्स में नहीं अलाउड करते, फिर बाद में वो जैसे ही सिचुएशन इजी हो जाती है फिर बाद में जी वो करते हैं। जी ठीक है, ओके सर। उसके बाद का जो सर क्वेश्चन है वो ये है कि कैन वी कंटिन्यू बिजनेस इवन आफ्टर रेड? क्या रेड के बाद हम अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, प्रैक्टिकली दो बातें हैं इसमें। जी ये भी कहीं पर नहीं लिखा है कि इसको आपके बिजनेस बंद कर देना है, जी पर प्रैक्टिकली हम देखें तो इट इज मोर इम्पॉसिबल। जी हाँ, एक है कि जैसे आप कोई हॉस्पिटल चला रहे हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हो जी तो डेफिनेटली इट विल गो ऑन एंड ऑन, उसमें वो कुछ नहीं करते कि यार ये बंद कर दो ऐसा। पर जो आप रिटेल में हो या जहाँ पर मूवमेंट ऑफ पर्सन्स होते हैं तो वो उसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, वो मूवमेंट ऑफ पर्सन्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि किसी अंदर आने देना, किसी बाहर जाने देना, उसके ऊपर उसके कंट्रोल्स होते हैं। जी तो अगर हम कहें कि आपके शोरूम है पर किसी को वो अंदर ही नहीं आने देते तो हाउ कैन यू डू बिजनेस? जी तो मतलब बिजनेस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पर पर्सन्स के ऊपर डेफिनेटली है कि किसी अंदर आने देना है नहीं आने देना है। जी जी ओके सर, ओके सर। आफ्टर दैट क्या पेंसिल से लिखा हुआ कोई चीज को वो अपने एविडेंस के लिए यूज कर सकते हैं, रिटन बाय पेंसिल? जी, उसमें मैं कहूँगा कि पूरी बात देखनी चाहिए। सिर्फ पेंसिल से लिखी हुई एक चीट मिली तो उसके ऊपर वो मतलब आर्बिट्रेरली कुछ काम नहीं कर सकते। उसे हमें ये देखना होगा मतलब पूरी तरह से, जैसे कहीं पर लेजर में आपने पेंसिल से लिख दिया जी और वही पेंसिल वाला फिगर आपने नीचे भी टोटल में यूज किया, तो दैट मीन्स के यू आर अलाउइंग दिस फिगर टू बी एडेड। आपने ही बोला है कि ये मेरा ही फिगर है। पर जी अगर कोई सिर्फ एक चीटी मिलती है जिसमें सिर्फ पेंसिल से लिखा हुआ होता है और आर्बिट्ररी लिखा हुआ होता है तो फिर ऑनर्स डिपार्टमेंट पर है कि ये पहले तो हमें उसे एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे हमारे लिए काम का है या हमारे सिर्फ रफ वर्क है। जी और दूसरा फिर उसके ऊपर होता है कि वो भी उसे भी एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे अपने बिजनेस से जुड़ता है या फिर कैसे एडिशन होता है। जी जी ठीक है सर, ठीक है सर। आफ्टर दैट विच बैकअप इज फाइनल? कौन सा बैकअप फाइनल गिना जाता है? हम्म। ये एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ना मतलब आप देखोगे कि किसी भी अकाउंटेंट के पास या आपके वहाँ पर हर बार 2 या more than 2 सेट्स ऑफ बुक्स रहते हैं। जी तो मैं कहूँगा एक सिंपल लाइन में कि जिसने भी रेवेन्यूज प्रोन है, मतलब जहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की संभावना है वही बैकअप फाइनल होगा। और बैकअप फाइनल की बजाय मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर एक में समथिंग इज मोर देन दैट तो दोनों का मिला के जो भी मैक्सिमम बनता है वो दोनों का मिला के करते हैं। अच्छा तो ओके ऐसा नहीं है कि चलो ए ले लिया तो फिर बी में से कुछ लेना ही नहीं है, ऐसा नहीं। जी वो लोग तो दोनों में से जितने भी मैक्सिमम हो सकता है वो छोड़ेंगे, फिर वो आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे वो ट्रांजेक्शन को कैसे समझाएं। जी जैसे आपने एक में लिख दिया कि एक सेल्स मैंने 10 लाख में किया, दूसरे में लिख दिया 12 लाख में किया। अगर 10 लाख वाला वो लेते हैं फिर 12 लाख मतलब 2 लाख का एडिशन भी कर ही लेते हैं। जी 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 ओके सर, जी ओके सर। स्टॉक के बारे में कई सवाल है। जी उसमें से पहला सवाल ये है कि जो स्टॉक होता है वो ग्रॉस गिनते हैं या नेट वेट लेते हैं? जी, स्टॉक के बारे में भी काफी सवाल मुझे इस दौरान पूछे गए हैं। जी सर। तो सबसे पहले तो ये कहेंगे कि ग्रोस या नेट।
तो जैसे आपके जो यूजुअल प्रैक्टिस है वही लेंगे। नॉर्मली सब लोग नेट ही लेते हैं, तो वो भी नेट लेंगे, लेकिन आपको स्ट्रोक कैसे काउंट करवाना है, आपको एक आपके बंदे को साथ में रखना है जो कि समझाएगा कि ये ग्रोस है, ये नेट है, और ये हम नेट अपने फाइनल में ऐसे लेते हैं। जी सर। मतलब ये दोनों का महत्व है। जैसे आपकी जो भी रूटीन प्रैक्टिस रहती है, जी सर। बस तो वैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं। जी सर। पर आपको उसे समझाना होगा कि ये मेरी प्रैक्टिस है, हम ग्रोस पे लेते हैं और ऐसे काउंट करते हैं और ऐसे एवेल्यूएट करते हैं। ओके। और ठीक है। जैसे हमने स्टॉक रजिस्टर में भी रखा होगा, जी। तो वो सब मिला के मतलब पूरी एक सिस्टम फॉलो करते हैं, जैसे जो हम फॉलो करते हैं अपने स्टॉक मेंटेनेंस में, वही वो स्टॉक टेकिंग के टाइम वो करते हैं। जी, मतलब यानी सर हमारा जो जस्टिफिकेशन है वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। होना चाहिए। फिर ग्रोस के नेट पर ज़्यादा डिपेंड नहीं है, हमें उसे समझाना है कि कैसे लेना है। ओके। ओके, ग्रेट सर। देयर कैन बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, पर हम कह सकते हैं कि हम ऐसे लेते हैं, आपको भी ऐसे लेना है। ओके। ओके, ठीक है सर, ठीक है। सर, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ही एक मुद्दा है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हम कैसे लेंगे, तो एक बात है, जाहिर सी बात है कि वो लोग जब आते हैं तब वैल्यूएशन के बजाय फिजिकल काउंटिंग पर ही ध्यान देते हैं। मतलब हमें क्वांटिटी पे ध्यान देना है, ना जी कि वैल्यूएशन के ऊपर। वैल्यूएशन कैन बी सेट आफ्टरवर्ड्स, वो एक ओके। बात की बात हो जाती है। अगर हम ओके। अपने स्टॉक रजिस्टर अच्छे से मेंटेन करते हैं, जी। और अगर हम उसे ये समझा सकते हैं कि जितना भी स्टॉक रजिस्टर में मैंने दिखाया है क्वांटिटी, जी। वो यहाँ पर सामने है, जी। तो फिर वैल्यूएशन कोई बड़ी बात नहीं ओके सर। है। ओके। इट कम्स आफ्टरवर्ड, मतलब एट द टाइम ऑफ ट्रेड वो सिर्फ इस क्वांटिटी पे ही ध्यान देते हैं, और ओके। वही हमें एक्सप्लेन करना है। जैसे हमारे टोटल स्टॉक का फिगर हो गया 5 kg या 10 kg, तो हमें टेन जी। के जी हमें गिनवा के देना है, जी सर। जी राइट। सर। क्योंकि ये बहुत ही ऊपर रहता है कि वो बात की बात है कि उसका वैल्यूएशन हम कैसे करें। जी वो सर। एक वो हम कभी भी डिस्प्यूट कर सकते हैं। ओके। ओके सर। सर, ये श्रीधन कैन बी एडेड टू एक्सप्लेन स्टॉक। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट मैटर है कि सृजन जी। ऐड कर सकते हैं। जी। उसके लिए ना मैं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड करूंगा तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि ओके। नॉर्मली सृजन कर पे रहता है। पर ओके। हम कहेंगे कि यहाँ पर था, तो हमें ये दिखाना है कि यहाँ पर क्यों था। मतलब चलो ये कह दे हम कि ये सिक्योरिटी पर्पस हमने अपनी तिजोरी में रखा था, जी। तो हमें उसे सेग्रीगेट करके देना होगा कि ये है वो सृजन जो हमने यहाँ पर संभाल के रखा है। जी। तो अगर हम उसे एक्सप्लेन कर पाए जी। तो ये निकल सकता है डेफिनेटली। Okay, sir. Okay. Sir, next question is whether gold can be lended from others, are family members or anyone? यस यस, ये एक मीथ है। मैंने काफी बार देखा है ये ज्वेलरी बिजनेस में, कि वो लोग क्या करते हैं कि किसी के पास से मैंने इतना सोना लिया था और जी उसके सर। एग्रीमेंट बनाया था, पर अब के काफी जजमेंट्स ये आ चुके हैं कि जी ये सर। हम किसी भी केस, मतलब बैंक के बजाय किसी भी तरह से अगर हम लोन लेते हैं तो दैट इज नॉट अलाउड। Okay. फ्रेंड्स, वो अवॉइड कीजिए आप, क्योंकि ये पुरानी प्रैक्टिस है कि हमने किसी के पास से गोल्ड ले लिया और फिर उसे वापस गोल्ड दे दिया। बेटर कि आप केस में ही, मतलब बैंक से ही लोन लें और बैंक से ही रिपे करें। तो मतलब हम ये कहें कि मेरे पास इतना सोना पड़ा है, उसमें से ये मुझे इसने लैंड किया था, ये मेरे पास जी सर। एग्रीमेंट है, तो वो आगे जाके आप 269 एसेस में फंस सकते हैं। तो जी सर। काइंडली अवॉइड इट। Okay, sir. Okay. Sir, And next before question is before that, I would like to mention one important point, कि जी जैसे काफी चीजें ना बाद में, मतलब हमारे हमारे फेवर में भी काफी जजमेंट्स है। जी सर। जैसे ये स्टॉक के रिलेटेड, या मैं अभी भी जितनी भी बात कर रहा हूँ उसके रिलेटेड, हमारे फेवर में भी काफी जजमेंट्स है। जी। पर हम उसे एक, जब भी हम फंसते हैं तो ले तो ठीक बात है, पर जी। प्लानिंग के समय तो हमें लॉ पे अबाइड रह के ही हमें आगे चलना होगा। जी। तो जी। मैं जो भी जवाब देता हूँ ना, मैं कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में लेके आपको आंसर कर रहा हूँ। जी। अगर आप फंसे तो ठीक है। फिर उसके बाद वाले जो भी केस लॉ से उसके हम हेल्प ले सकते हैं। ओके सर। बट एट द टाइम ऑफ प्लानिंग वी शुड नॉट प्लान अकॉर्डिंगली, कि चलो इसके ऊपर हमने
हम रिलाय करके हम ऐसे ही प्लानिंग करें, वो नहीं हो सकता। ओके वो नहीं करना चाहिए, वो अवॉइड करना चाहिए। ओके ओके। जी। सर आफ्टर दैट व्हाट अबाउट स्टॉक ऑफ अदर्स, यानी रिसीव जॉब वर्क जो रिसीव हुआ है हमें, उसका हम्म। स्टॉक का क्या करें? हाँ, वो भी एक इम्पोर्टेंट मैटर है कि जी ये एक यूजुअल प्रैक्टिस है कि हमारे यहाँ पर किसी न किसी के जॉब वर्क के लिए गोल्ड आता है, जी और फिर हम उसे ऑर्नामेंट बना के वापस भेजते, स्पेशली फॉर मैन्युफैक्चरर्स ये या होलसेलर्स ये मैटर होती है। जी तो उसमें ना हम अगर हम कन्विंस कर पाए कि ये हमारे पास डिलीवरी चलन है, या जी ये सो एंड सो पेपर्स है जिसकी जी। वजह से हम प्रूव कर पाए कि ये गोल्ड इसने हमें भेजा है, ओके एंड एंड ऑन द कंट्रोरी वो भी सामने वाला जिसने हमें भेजा है वो भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने ये भेजा था, और ओके उसके स्टॉक में भी ये माल पड़ा था, और वहां से भी ये निकाल के इधर भेजा। तो मतलब जी हम इतना प्रूव कर पाए कि वहां से निकल के हमने यहाँ पर लिया था, और जॉब वर्क इज कंटिन्यू, जी तो वो ऐड नहीं कर सकते। जी। पर ये हमारे ऊपर होता है कि हम कैसे उसे एक्सप्लेन करें। ओके ओके सर, ओके सर। जी। At this point of time, I would like to request all the participants, आपके जो questions हैं वो अपने chat box में आप लिख सकते हैं। जो ये क्वेश्चंस खत्म होने के बाद हम उनका आंसर्स देंगे, तो आपके चैट बॉक्स में आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं। और अभी तक आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, प्लीज राइट योर फीडबैक्स। आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? थैंक यू वेरी मच। वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ट्रैवलर्स पॉइंट ऑफ व्यू जो है, मींस जो ट्रैवल्स में कुछ मींस कैश सीज्ड ड्यूरिंग ट्रैवल्स। हाँ जी, वो एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जी नॉर्मली हमारे गोल्ड बिजनेसमैन ट्रैवल अलॉट, और वो भी काफ़ी सारा जोखिम उठा के मूविंग करते रहते हैं। जी तो उसके लिए जैसे ये डायरेक्ट मैं कहूँगा कि ये डायरेक्टली रेट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, फिर भी हमने इसमें लिया है। एंड द रीजन बीइंग, मुझे ये सर कहना है कि जैसे आप लोग ना मतलब जब भी माल लेके निकलते हैं या फिर कहीं से वापस आते हैं, तो एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि मतलब सबसे बड़ा डर होता है कि पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे। तो फिर मेनली डर किस बात का होता है? डर तो जैसे अपने एक नॉलेज नहीं होता, और दूसरा डर अपने अपने ही कुछ ना कुछ अपने में खोट है। तो फ्रेंड्स, वो डर तो आप अपने सीए से या कंसल्टेंट से मिलकर दूर कर सकते हैं कि आपको क्या पेपर्स ले जाने हैं, और दूसरा आपको जो गलत करना है वो बात आपको खुद खत्म करनी होगी। तो मतलब अगर मैंने काफी बार देखा है कि इसकी वजह से काफी लोग अननेसेसरी हार्डशिप में लैंड कर जाते हैं। तो ट्रैवल के समय तो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे बना के चलिए। वहां पर ट्रैवल्स के वक्त पुलिस वाले क्यों आपका माल सीज कर सकते हैं? उसका एक ही रीजन है कि वो लोग ऐसे केस बिठा देते हैं कि जैसे आपने ये चोरी का केस है, या चोरी का बुलियन है, या स्मगलिंग का बुलियन है। तो मतलब केस और बुलियन दोनों की बात मैं साथ में करूंगा, तो दोनों वो लोग आपको ऐसे ट्रीट करेंगे। अब आपने ये आपका अकाउंटेड माल नहीं है, इसलिए आपने बुक्स या उसके साथ पेपर्स आप नहीं ले गए। तो पहली बात तो आप जब भी बाहर निकले तो एटलीस्ट आपका पेपर साथ में रखिए। जीएसटी में भी हमने इसीलिए एक डिलीवरी चलन बहुत ही सिर्फ गोल्ड व्यापारी के लिए ही बनाया है, डिलीवरी चलन। जी वो सर भी आप मयूर बाइक से या किसी के पास से ले सकते हैं। तो मतलब आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिए। जी जैसे सर आपके स्टॉक में ये था, तो क्या है कि सबसे पहले तो आपको पुलिस को कन्विंस करना है। जी और एक आयरनी वाली बात ये है कि पुलिस जी वाले ये पहले वही चैलेंज करते हैं कि ये आपका माल है या आपका पैसा है, वो आपको प्रूव करना है। जी और दूसरा इनकम टैक्स में वो लोग ये कहते हैं कि ये आप ही का है, आपको ये प्रूव करना है कि मेरा नहीं है। जी तो मतलब ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। जी सर तो पहले मुझे लगता है कि पुलिस वाले के लिए तो एटलीस्ट आपको अपने पेपर साथ में रखने होंगे, तो जी देर इज मोर चांस कि आपके लिए वो आसान रहेगा। जी जी हालांकि जी क्योंकि अगर वो लोग सेज कर लेता है केस, तो उसका या बोलिए तो उसका वही हाल होता है जैसे वो कोर्ट में जाते हैं, फिर बाद में आपको कोर्ट से माल छुड़ाना रहता है। जी सर तो दैट जी इज सर मोर लेंथियर प्रोसेस। उसके जी बजाय बेटर है कि आप इनकम टैक्स के पास जाओ, तो वो ठीक रहेगा। जी सर तो मेरे हिसाब से आपको पेपर्स अच्छे से रखने हैं। जी और सर मतलब ना ट्रैवल्स के दौरान आप पूरे अलर्ट रह के ट्रैवलिंग कीजिए।
Great. काफी बार आपको पास ये ऑप्शन रहता है, अगर आपने पेपर्स में दिखाया है तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप कुरियर से माल मंगवा रहे हो और आप सिर्फ अकेले जाए। पर ये छोटी छोटी बातें हैं, पर वो अगर हम ध्यान दें उसके ऊपर और प्लानिंग करके निकले, जी सर। जैसे जीएसटी में ई वे बिल नहीं है आपका, तो वो भी एक आपके लिए अच्छी बात है। तो मतलब अगर आप प्लानिंग करके निकले तो आपके लिए बहुत इजी है कि ये सिचुएशन को हैंडल करना, इसको अवॉइड करना। जी सर। तो मैं ये कहूँगा कि आप ये खास ख्याल करके चलिए। जी सर। ओके। जी ओके सर, बुलियन जो ट्रैवलिंग के दौरान बुलियन जो सीज होता है उसके बारे में एक क्वेश्चन है। हाँ, मतलब वो वही इसके साथ में मैंने छोड़ दिया था कि कैश और बुलियन दोनों में, ओके। बुलियन में ये लोग स्मगलिंग का माल ऐसे करके कैश करते हैं और ऐसे हमें डराते हैं। पर वो भी अगर हम ये कह सके कि ये अपना ही माल था, अगर हम पेपर साथ में लेके चलते हैं तो इट इज इजी फॉर अस टू प्रूव दैट कि ये अपना ही माल है। हाँ, फिर भी ये पुलिस डिपार्टमेंट है तो कहीं ना कहीं उसकी क्षति ज़्यादा होती है। पर अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ ये डील कर सके तो आसान है। और पहले थोड़े दफ़ा आपको ये लगेगा, अगर आप पेपर्स के साथ जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। ओके सर। ओके 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 ओके। Okay, sir. The next question is raid due to third party raid means जो third party raid. हाँ, थर्ड पार्टी मतलब कहीं दूसरी जगह पर अगर रेड आती है जी तो उसकी इफेक्ट आपके ऊपर क्या होगी, जी और क्या उसके लिए भी आपके यहाँ पर रेड हो सकती है। जी तो इफेक्ट तो सबसे पहले आपको जहाँ पर भी रेड हुई है जी सर। उसके साथ आपके ट्रांजेक्शन चेक करने हैं। जी सर। जी और इमीडिएटली आपको अगर बिल्स वगैरह आपको रह गया है बुक्स में डालने का तो आपको इमीडिएटली बुक्स में डाल देना। जी सर। हाँ, आपके यहाँ पर उसकी वजह से रेड हो सकती है कि नहीं, ये एक ऐसी बात है कि जैसे ट्रांजेक्शन की मटेरियलिटी देखी जाती है कि आपके साथ अगर सब्सटेंशियल ट्रांजेक्शन उसी पार्टी के साथ है जहाँ पर रेड है तो आपको अलर्ट रहना है कि आपके यहाँ पर भी वो रेड आ सकती है। ठीक है सर। और ठीक है। दूसरा कि जैसे कुछ इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है तो फिर ये हो सकता है कि वो सिर्फ आपको नोटिस दे और एक्सप्लेन करे कि आपका ये ट्रांजेक्शन उसके साथ था या नहीं था। जी हाँ, तो ये मतलब उसने फिर स्टेटमेंट में आपके ट्रांजेक्शन के बारे में क्या बताया है, जी उसका एक्सप्लेनेशन में उसने क्या ऑफर किया है, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। जी मतलब जी सर। इनिशियल लेवल पर तो आप ये समझिए कि जो भी आपने उसके साथ ट्रांजेक्शन किए हैं वो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है कि नहीं वो चेक कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है। ठीक। ग्रेट सर। ओके सर, उसके बाद और जो बाकी क्वेश्चन। उसके उसके बाद भी एक क्वेश्चन आता है कि उसने जो भी स्टेटमेंट लिखवाया है क्या वो जी हमें बाउंड है कि नहीं। जी तो जैसे एक सिर्फ ये बात कहूंगा कि सिर्फ उसने लिखवा दिया तो वो आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं हो जाता। जी। उसके लिए आपकी कंसेंट होनी, मतलब आप में एडिशन के लिए आपकी कंसेंट होनी जरूरी है। ओके। और फिर कोलोबरेटिव एविडेंस भी साथ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे आपने इससे इनवॉइस बना के भेज दिया, फिर बुक्स में आपने नहीं लिया उसने ले लिया, तो जी। फिर यू हैव टू एडिट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ ये मेरा ही ओके। है। तो मतलब कोलोबरेटिव एविडेंस के साथ उसे जज करना चाहिए, ना कि सिर्फ उसने लिखवा दिया उसके बेस पर वो एडिशन नहीं हो सकता। जी सर। जी जी सर। ओके सर, who can answer at the survey time? The next question. हाँ, तो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जी आपके क्वेश्चन सिर्फ आपको ही जवाब देने हैं। जी जी पर हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन की मैटर है, वो इसे मालूम है, या ये ये ऑपरेशंस मेरे हैं, ये संभालते हैं। जी तो जी फिर एक बात रहेगी कि हम जिसे भी कहते हैं कि ये हमारे जो भी ट्रांजैक्शन है ये संभालते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने मैनेजर है वो सब संभालते हैं, उसे सब मालूम है। जी तो फिर मैनेजर ने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है जी वो फिर मुझे बाउंड रहेगा। कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए अगर उसने मैनेजर ने जो भी बोल दिया फिर वो जी मुझ पर बाइंडिंग रहेगा, क्योंकि मैंने ही बताया है कि मेरे से ज्यादा उसे ये सब मालूम है। जी जी। ओके सर। ओके सर, आपको इसका पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा सर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम रिसीव कर रहे हैं अभी। दे देंगे। मैं विल ट्राई टू मैनेज के जितना भी हो सके हम आंसर दे। इसमें मुझे लगता है काफी सारे के आंसर तो वैसे मिल चुके होंगे, पर जी फिर भी विल ट्राई टू हम सबके ग्रेट लेंगे। ग्रेट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, हाउ दे कैन ऐड चिट्ठी चबरखी, जो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है।
हाँ, तो वही अवॉइड करनी है, जी। ओके। क्योंकि है ना, मतलब हम लोग अकाउंट को बहुत ही इजी लेते हैं जी। कि जो भी हुआ तो वो एक चिट्ठी में लिख दिया, फिर बाद में बिल बनाएंगे। जी। तो ये प्रैक्टिस अब एटलीस्ट अब अवॉइड कर लेनी चाहिए। जी। जी। हाँ, एक है कि वो चिट्ठी सिर्फ अफिशिएटली, जैसे मैंने पहले भी बता रहा था कि वो अफिशिएटली ऐड नहीं कर सकते। जी। जैसे पहले तो हमें एक्सप्लेनेशन देना है कि ये चिट्ठी किसके बारे में है। जी। अगर हमने ये बताया कि ये चिट्ठी सिर्फ मेरी रफ कैलकुलेशन है, जी। तो वो अब उसके ऊपर आ जाता है कि वो कैसे अपने अकाउंट के साथ मैच करे, या वो कैसे ऐड करने के लिए वो क्या रीजंस देते हैं। जी। तो मतलब दोनों तरफ है। फर्स्ट ओनस इज ऑन अस कि हम जी। उसका क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं। जी। जी। पर अगर वो कहीं ना कहीं हमारे अकाउंट से रिलेटेड है, या कहीं ना कहीं उसमें नाम साइन वगैरह है, जी। तो इट इज ऑब्वियस कि ये हमारे 2 नंबर के अकाउंट है, और वो हमें एडिशन मतलब स्वीकार करना होगा। तो ग्रेट। अगर वो सिर्फ रफ कैलकुलेशन आपने लिखा है, जी। या फिर कहेंगे कि सिर्फ हमने टेलीफोन नंबर लिख दिया है, जी। तो जी। उसके बेस पर वो सिर्फ अफेक्टली वो भी एडिशन नहीं करते, उसे जी। भी ये मालूम रहता है। तो मतलब साथ के सारे एविडेंस देखने होते हैं, कोलैबोरेटिव एविडेंस, वो जी। सब मिला के ये जी। डिसाइड होता है कि ये एडिशन होगा कि नहीं होगा। ओके। इट्स डिपेंड्स फैक्चुअल बेसिस, ओके। हम क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं और वो भी क्या रीजनिंग देते हैं, उसके उसका भी कुछ लॉजिक बनता है। जी। है। ओके। जी सर, दिलीप सोनी जी की तरफ से यहाँ से हमारे क्वेश्चंस हैं अभी के, और अभी हम ये यहाँ से जो हमें क्वेश्चंस मिले हैं वो सेगमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो दिलीप जी। सोनी जी की तरफ से ये जो क्वेश्चन है, किस कारण सर रेड पड़ सकती है? हाँ दिलीप जी, वो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि देर आर मेनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और हम भी काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं, जी। तब जाके हमारे पर रेड होती है। तो जी। सोर्स जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आपके सबसे असेसिंग ऑफिसर आपका रिटर्न, आप जो भी रिटर्न फाइल करते हैं, इफ दैट इज नॉट रिलेट विद योर इनकम, प्रेजेंट इनकम, आप जो भी, अगर आप महंगी गाड़ी में घूमते हैं, अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं, अगर आपके पास काफ़ी एसेट्स है, और आप रिटर्न में काफ़ी लो दिखा रहे हैं, जी। मतलब आपकी पब्लिक प्रोफाइल और आईटी की प्रोफाइल एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट मैच होनी चाहिए। जी। जी। मतलब काफ़ी रीजंस है आपके, जैसे किसी दूसरे डिपार्टमेंट, जैसे जीएसटी ने आप पर रेड कर दी, तो उसकी इंफॉर्मेशन लेके आईटी डिपार्टमेंट कैन रेड यू। जी। जैसे आईएनसीआई, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। तो जी। अगर उसने कुछ ऐसी इनपुट दे दी कि इसके पास इतने सारे अनडिस्क्लोज इनकम है, तो उसके ऊपर भी आपके ऊपर रेड हो सकती है। जी। तो इट इज़ बेटर, मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि आपको क्या क्या करना होगा, जी। जी। तो वो उसका पालन करे, जी। अपना रिटर्न ठीक से भरे, अपने प्रॉफिट अच्छे से दिखे, आपके इनकम के रियल इनकम के साथ वो मैच एटलीस्ट होना होना चाहिए। चाहिए। ठीक है। ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो Vivo 1804, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। Vivo 1804, सर, गिरवी रखा हुआ गोल्ड मिला तो उसका क्या बताना है? गिरवी रखा हुआ, वो समझ नहीं पाया मैं, गिरवी रखा हुआ गिरवी मतलब। रखा हुआ गोल्ड मिला तो उसका क्या बताना है हमें, एक्सप्लेनेशन। अच्छा, तो मतलब हमने किसी के पास से गोल्ड लिया और उसके ऊपर पैसे दिया, यूं? अभी तो उन्होंने इतना ही लिखा है, गिरवी जो कोई बात नहीं, हमने आप रखा इसमें हुआ है वो गोल्ड तो मिल एक्सप्लेनेशन गया है। आएगा, आप कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट पर जाइए। ठीक है। सर, मिलन भाई भद्रेशा की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। जॉब वर्क का काम होगा और वो गोल्ड का ओनली सादा चिट्ठी होगा तो उसका कैसे कर पाएंगे? अच्छा, आप जॉब वर्क का काम करते हैं और सिर्फ चिट्ठी से काम चले, तो मतलब बेटर, इट इज बेटर कि आप वो मूव करें कि आपके लिए एक स्ट्रक्चर बनाए। जी। अब का ना, मतलब एक एनवायरनमेंट अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चिट्ठी पे काम चला पाएंगे। तो बेटर है कि आप जैसे डिलीवरी चलन बनाए ना, आपका इसको रजिस्टर बनाए जिसमें सारे मूविंग और आउट सब दिखा सके। जी। जी सर। तो इट इज बेटर कि आप मतलब थोड़ा अपग्रेड होए। ओके सर। ओके। सर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो चेतन भाई वाछानी की तरफ से है। रेकी टाइम कितना रहता है जब इनकम टैक्स रेड करने से पहले इनकम टैक्स ऑफिसर जो करते हैं उससे पहले रेकी टाइम? नॉर्मली नॉर्मली 1-2 महीने का रेकी टाइम रहता है, वो लोग ओके। करते हैं। सब प्लेस की विजिट करते हैं, आपके घर उसे मालूम रहता है, आपके बिजनेस प्लेसेस जितने भी है उसे मालूम रहता है।
और भी असेट जो भी है वो काफ़ी इंफॉर्मेशन निकालते भी है। जी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स निकलवाते हैं, मतलब जी वो काफ़ी मेहनत करते हैं। जब भी कहीं पर बड़ी रेड होती है तो उसमें जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसमें कौन कौन से पार्टनर्स है, जी उसके स्टेक क्या है, वो सभी वो इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और ना मतलब पूरी नॉर्मली ये क्या करते हैं कि एक पूरे रेड पर पूरे ग्रुप पर ही रेड आती है। तो जी मतलब ये नहीं कि एक वाले दो किले पर आए फिर दूसरे के ऊपर नहीं है। जी नॉर्मली ये करते हैं कि पूरी जी एक्सरसाइज करके आते हैं और पूरे ग्रुप को एक साथ में लेते हैं। जी ठीक है सर। नीरज भाई सोनी की तरफ से अगला क्वेश्चन है, कैन दे टेक द फोटोज ऑफ मोबाइल और द डेटा ऑफ द मोबाइल एज एविडेंस? Yes, they can and they can use and they are usually doing this. ओके वो आपको जनरली वो आपका इंस्ट्रूमेंट ले जाते हैं और उसका बैकअप वो अपने ओर से ले लेते हैं। जी जहाँ पर जरूरत पड़ी वो फोरेंसिक में भी भेजते हैं। अच्छा जी, तो ठीक जैसे हमने कुछ डिलीट कर दिया है तो दे कैन रिट्राइव इट। ओके एक एक मैं बीच में भी बात करूँ, जैसे किसी ने मुझे एप्पल फ़ोन के बारे में पूछा था। एप्पल फ़ोन का बैकअप वो कैसे लेते हैं, मतलब वो ज़्यादा मुझे एप्पल फ़ोन के बारे में बात पता नहीं है। पर नॉर्मली आपके पास से वो पासवर्ड वगैरह ले सकते हैं जी और आपके ही पास से वो रिक्वेस्ट करवाएंगे कि आपकी इंफॉर्मेशन हम रिट्राइव कर सके, जैसे एप्पल क्लाउड में से लेना है जी तो वो कर सकते हैं। जी जी ठीक है। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज फ्रॉम पार्थ, इज व्हाट्सएप चैट और एस्टिमेट्स फोटोज शेयर्ड वाया व्हाट्सएप एडमिसिबल? यस, फिर आपको ये बताना है कि ये मेरा सिर्फ एस्टिमेट था, फिर बाद में मैंने ये धंधा नहीं किया है, काम नहीं किया है। जी वो आपको ये बताना, मतलब वो एवरी चीज आपका एवरी स्क्रीनशॉट वो आपके सामने रखेंगे कि ये क्या है। जी फिर आप क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं और क्या और एविडेंस देते हैं, उसके ऊपर जी सर निर्भर करता है। जी जैसे उसको उसके पास में ऐसे कुछ एविडेंस मिले कि इसका पैसा भी उसके बाद में अगर या मेटल उसके सामने मिल गई है, ऐसा कुछ दूसरे कम्युनिकेशन में मिलता है, या जी वहाँ से कोई चिट्ठी ऐसी मिलती है कि इसके सामने इतना पैसा मिले, तो फिर ये तो जाहिर है लॉजिकली दोनों कोलोबरेट हो गए कि ये जी आपने काम किया है और उसके जी सामने आपको मेटल या पैसा मिला है। जी तो ये आपको संभाल के रखना है, मतलब संभाल के सारे एक्सप्लेनेशन देना है। जी सर जी 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 okay sir, next question is from Krutin by Joshi, what are the do's and don'ts when income tax officers raid your office or your home? ओके, डूस एंड डोंट्स वैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फिर भी हम एक डूस एंड डोंट्स एक मेल करके आप या फिर एक स्लाइड बना के आपको भेज सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल सा है, क्योंकि ये थियरेटिकल तो ये सारा करना है, हमें उसे आने देना है, जैसे हम पहले बता रहे थे कि हमें आने देना है, हमें कोऑपरेट करना है। फिर जो भी लॉकर्स या बुक्स या किसी के भी वो इंफॉर्मेशन हमसे मांगे तो वो जी हमें देना है। जी और बाकी एडवांस में कहेंगे कि हमें उसके साथ झगड़ा नहीं करना है, हमें उसे जो भी एक्सप्लेनेशन मांगेंगे वो देना है, मतलब जी नॉन कोऑपरेट हमें नहीं करना है, कोऑपरेट जी करके काम करना है। ग्रेट ग्रेट सर। चेतन भाई वाछानी की तरफ से अगला क्वेश्चन है, रेड के बाद अपील में जा सकते हैं? यस 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 यस, वो क्या रहता है कि जैसे हमने स्टेटमेंट में क्या लिखवाया है, अपील तो हमारा राइट रहता ही है। जैसे उसने असेसमेंट कंप्लीट कर दिया है, जी फिर हमें ये ठीक नहीं लगा या हमें लगा कि इतना हम उसमें जुड़ना नहीं चाहिए था, तो जी वी कैन गो टू द अपील। बट जी उसमें क्या रहता है कि जैसे हमने क्या स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट में क्या लिखवाया, अगर हम एडमिट कर चुके हैं जी और अगर हमने कोई रिट्रैक्शन नहीं किया है बाद में भी, जी तो अपील करके क्या फायदा। मतलब एक बार हम एडमिट कर चुके हैं कि ये इतना मेरा अनडिस्क्लोज इनकम है, ओके तो ओके फिर बेटर कि आप अपील में ना जाए। जी वो मतलब सिचुएशन के ऊपर है कि आपने क्या रिक्वाया है, क्या पकड़ा गया है और क्या असेसमेंट ऑर्डर हुआ। जी अगर एक्सेसिव है, आपको ये इनजस्टिस लगता है, तो यू जी कैन डेफिनेटली गो टू द अपील। अपील के बाद आप ट्रिब्यूनल में और फाइनली हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। जी आपने अगर आपको ये लगता है कि मेरे पर जो भी रेड हुई है जी वो मतलब कहीं ना कहीं गलत हुआ है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी रीड कर सकते हैं। जी 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 ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम Krutin by Joshi. If raid officers don't find anything wrong with your tax filing, can they charge you for having pirated data? How should I behave when income tax officers raid my house? नहीं नहीं, वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर के लिए वो आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उसे उसके पावर में ये आता है कि उसे कंसर्न डिपार्टमेंट को
नॉलेज करना है, मतलब उसे इन्फॉर्म करना है, बस इंटीमेट करना है। जैसे हम बात कर रहे थे कि रास्ते में अगर पुलिस ने आपको पकड़ा और केस सेज की है, तो ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो डायरेक्ट इनकम टैक्स को इन्फॉर्म करे। वैसे ही जैसे इनकम टैक्स वालों की भी ड्यूटीज रहती है। जैसे आपके यहाँ पर आए और कुछ जैसे विस्की वगैरह मिल गया या कुछ ऐसी बातें मिल गई जो कि उसके परव्यू में नहीं आती है, तो वो सिर्फ कंसर्न डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं। वो आपको उसके लिए आपको प्रेशर नहीं कर सकते कुछ, या आपके ऊपर वो डायरेक्टली कुछ एक्शन नहीं ले सकते। जी जी। सर, दिस इज फ्रॉम धर्मेश। कितने फाइनेंशियल ईयर का हिसाब रेड के टाइम चेक कर सकते हैं? तो वैसे 8 इयर्स का रूल्स है, जी पर रेट का हिसाब हम कहें तो हमें 6 इयर्स तक रिटर्न भर के देना है। जी और ये 6 इयर्स 10 इयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आपको 6 इयर्स से ज़्यादा जितने भी साल है उसमें अगर आपकी अनडिस्क्लोज इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, तो जी दे कैन कन्वर्ट इट टू 10 ईयर। तो आपको 10 साल तक का हिसाब आपको देना है। तो जी मतलब ये डिपेंड्स अपॉन द आइटम एंड द अमाउंट ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम, वहाँ से जितनी मिलती है उसके ऊपर है। तो नॉर्मली 6 इयर्स। जी जी। उसके बाद सुमित भाई का एक क्वेश्चन है, दैट इज रेड के टाइम क्या हम सीए या एडवोकेट रख सकते हैं? अब वो सीए को बुलाना ये तो आपका राइट है, पर वहाँ पर सीए को ड्यूरिंग द टाइम, रेट के टाइम वो वहीं पर बैठा रहे, ऐसा आप इंसिस्ट नहीं कर सकते। जी आप सीए के एडवाइस डेफिनेटली ले सकते हैं बिफोर, एटलीस्ट बिफोर राइटिंग योर स्टेटमेंट आप जी सीए की मदद ले सकते हैं। जी। पर वो एडवाइस के लिए आपकी आपके बिहाफ पर वो जवाब दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। ओके। तो आप सीए को कंसल्ट कर सकते हैं, पर वहाँ पर बिठाने का या पूरी रेट तक वो वहीं पर बैठा रहे, ऐसा इंसिस्ट नहीं कर सकते। जी पर जनरली इनकम टैक्स पीपल आर स्मार्टर, की उसे भी पता होता है कि क्लाइंट की काफ़ी सारी चीज़ें सीए को मालूम है। और क्लाइंट को समझाने के लिए भी, क्योंकि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उसको समझाने के लिए भी इनकम टैक्स वाले सीए को एडमिट करते हैं, उसे अंदर आने देते हैं और थ्रू आउट वो साथ में रखते हैं। पर लीगली कहेंगे तो ये राइट सिर्फ ऑथोराइज ऑफिसर का है कि वो सीए को आने दे ना आने दे। पर आपका राइट इतना ही बनता है कि आप सीए को कंसल्ट कर सकते हैं। कोई भी जवाब देने से पहले आप कह सकते हो कि मुझे उससे पूछना पड़ेगा कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, वो उसे ज़्यादा मालूम है। जी। ओके। कृतिन भाई जोशी की तरफ से और एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द मनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीजेस इन रेड्स? हाँ, वो पूरे मनी ले जाते हैं अपने साथ में। जैसे एक बार उसने अनअकाउंटेड डिक्लेयर हो गया कि इतने अमाउंट अनअकाउंटेड है, तो वो अपने साथ में ले जाते हैं, मतलब सेज कर लेते हैं। दूसरा, वो सेज वाले पूरे मनी सबसे पहले वो गवर्नमेंट के एक, मतलब इनकम टैक्स का एक अलग से अकाउंट होता है, उसमें वो जमा कर देते हैं। वो सर मार्केट में वापस आता है पैसा, वैसा भी उन्होंने लिखा है? नहीं, वो मतलब मार्केट में तो कैसे आएगा, गवर्नमेंट के पास चला गया ना, वो तब तक तो वहीं पर रहता है। हाँ, आपको आपको क्या करना है कि ये जो भी अनअकाउंटेड मनी उसने सेज किया है, तो जी दैट यू शुड ऑफर एज ए टैक्स। अगर आपका उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप वो बोल दें कि उसको टैक्स के सामने आप काउंट कर लीजिए, ताकि आपके ऊपर वो इंटरेस्ट भी चढ़े नहीं। और अल्टीमेटली अगर आपको मालूम ही है कि आपको टैक्स पे करना है, तो इट इज बेटर कि आप वो टैक्स के तौर पर ही ऑफर कर दें। जी तो वो एक लेटर लिखने से हो जाता है। जी जी। ठीक है। सर, वन प्लस 5 एक क्वेश्चन है, किसी भी पार्टी का माल अप्रूवल वाउचर पर आया हो तो वो अप्रूवल वाउचर मान्य रहेगा? हाँ, मान्य रहेगा अगर आपके पास दूसरा एविडेंस है, कि जैसे डिलीवरी चलन है, कहाँ से आया है, और वो सामने वाली पार्टी भी अगर एग्री कर लेती है कि हाँ ये मेरा ही माल है, क्योंकि वो लोग उसे भी पूछेंगे। ओके। तो ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है, और अगर आपने इसमें अच्छे से दिखाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। सुमित भाई की तरफ से और एक क्वेश्चन है, हम डेली वर्क अपने डायरी में मेंटेन करते हैं, वो डायरी रेड के वक्त उनके हाथ में आ जाती है, तब क्या होगा? ऐसा होता ही है नॉर्मली, सब लोग अपने डायरी या चीट वगैरह में कुछ लिखते रहते हैं। जी तो फिर आपको वो डायरी में जितना भी लिखा है आपको एक्सप्लेनेशन देना है, जी और उसके बेस पर एडिशन भी होता है और वो सस्टेन भी होता है। जी तो वो आपको फिर आपको समझाना है कि ये मेरा ये ट्रांजेक्शन था और मैंने इसमें कैसे बुक्स में ये लिया है। जी तो जितने भी अनअकाउंटेड है उसके लिए आपको एडिशन हो सकता है। जी।
केडी, एक यूजर है केडी, उनके तरफ से एक क्वेश्चन है, सर क्या हम कस्टमर को 18 मंथ के बाद ज्वेलरी लेबर फ्री में बना के देंगे, ऐसे गोल्ड पे आई सकते हैं? ऐसा कुछ लिखा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर से मैं क्वेश्चन सर हाँ, फिर से मैं प्लीज पढ़ता प्लीज हूँ। रिपीट इट। क्या हम कस्टमर को 18 मंथ के बाद हाँ, ज्वेलरी लेबर फ्री में बना के देंगे, ऐसे गोल्ड पे आईडी मींस इनकम टैक्स आ सकती है कि नहीं, ऐसा कुछ लिखा है, समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर मतलब मैं अच्छे से समझ नहीं पाया, पर फिर भी मैं कहूँगा कि अगर ये जो बड़े ज्वेलर्स है, पहले आपको शायद मालूम होगा कि 11 का आप जमा कराओ और बाद में 12 मंथ्स का आप ले जाओ, ऐसी स्कीम्स लॉन्च हुआ करती थी। पर जैसे अभी रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट की जो रूल्स आए हैं, तो उसके बेस पर ये मना कर दिया गया है कि आप ऐसे पैसे या ऐसे कुछ नहीं ले सकते, डायरेक्टली डिपॉजिट ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अगर उसके रिलेटेड है तो ये जवाब है, बाकी तो लेबर फ्री वाला अगर नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो आप कर सकते हो। तो एक डिस्काउंट हुआ आपकी तरफ से। जी जी जी। सर रामकृष्ण भाई आडेसरा की तरफ से क्वेश्चन है, सर जी अगर पुराने ज्वेल्स का बुक में सोने का भाव आज के रेट से बहुत कम है, हम जब आज के रेट से सोना बेच रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस प्रॉफिट बहुत आ रहा है, हम कैसे अपना रेट बढ़ा सकते हैं? हाँ, वो एक तो ये गोल्ड बिजनेस में ये बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार ना मतलब कम वैल्यू वाला अभी भी आज की डेट में हम देखें तो भाव लगभग 50,000 के आसपास हो गया। अगर हमारे पास 22,000 वाला सोना पड़ा है तो हम बेचेंगे तो प्रॉफिट तो दिखाएगा ही दिखेगा। तो ये एक मतलब मैं ये कहूँगा कि जीपी को आपको दो पार्ट में आपको डिवाइड कर लेना चाहिए, कि एक तो पहले रेट डिफरेंस वाला, और दूसरा जो भी अपने रियल लेबर है वो। तो ये अगर दो पार्ट में आप डिवाइड कर सके तो ये अच्छी बात है, ताकि आप आईटी वालों को भी अच्छे से समझा पाएंगे। हमारे सभी कस्टमर्स को हम ये करवाते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करवाते हैं, ताकि ये मतलब हम अच्छे से एक्सप्लेन करवा सके कि ये वो पोर्शन है जो भी मतलब लास्ट टाइम भी किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि हमारे में प्रॉफिट का मार्जिन सेट नहीं होता, क्योंकि ये दो रीजन है उसके लिए कि रेट डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। तो ये तब हम ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि अगर ये दोनों सेग्रीगेट कर लिया तो। जी जी ठीक। सर एक और क्वेश्चन है Vivo 1804 की तरफ से, गोल्ड मॉर्गेज करने का लाइसेंस नहीं है और ग्राहक का वही गोल्ड अपने पास मिला तो उसका क्या बताना है, साहूकारी लाइसेंस ऐसा लिखा। अगर आपने चेक से पैसे दिए हैं तो आप कह सकते हो कि ये मैंने चेक से पैसे दिए हैं और सामने मेरे पास ये गोल्ड पड़ा है। हाँ, एक दूसरी बात है कि आपने एक दूसरे का वायोलेशन किया है, तो साहूकार धारा जो बता रहे हैं उसका आपने वायोलेशन किया है। पर इनकम टैक्स इज उसको ये कंसर्न नहीं है कि आपने किस तरह का उल्लंघन किया। वो पहले अपना इनकम टैक्स देखेंगे कि इसमें बरोबर है। तो अगर आपने चेक से पैसे दिए और गोल्ड लिया है, तो आप अगर वो कह सके कि ये मैंने एज ए मॉर्गेज रखा है और उसके लिए एग्रीमेंट वगैरह भी आप दिखा सके तो शायद आप बचे। जी 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 ठीक है सर। उसके बाद प्रणब जैन की तरफ से क्वेश्चन है, इन व्हाट केसेस द रेड कैन बी डन एट अ पर्सन्स रेजिडेंस और विद एम्प्लॉई और अकाउंटेंट और एनी अदर पर्सन? हाँ, वो मैं पहले भी बता चुका कि जैसे कोई भी जगह पर रेड तो आ सकती है, उसे उसके पास सिर्फ एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए। जी अगर इनकम टैक्स वालों को लगता है कि इसके पास ये एम्प्लॉय के पास या अकाउंटेंट के पास कुछ बुक्स है, कुछ वैल्यूएबल्स है, आपकी कुछ ज्वेलरीज है, बुलियन से कुछ भी आपका ये केस पड़ा है, यहाँ पर पड़ा रहता है, अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है तो वो कहीं पर भी जा सकते हैं। जी और वो जरूरी भी नहीं है कि वो आपको बताए कि ये मेरे रीजन थे। जी वो आप पूछ नहीं सकते, मतलब आप पूछ सकते पर वो बताने के लिए वो बाध्य नहीं है। जी जी ओके। भाविक भाई की तरफ से क्वेश्चन है, मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया हो तो उसमें से पुराना डेटा निकल सकता है व्हाट्सएप और ईमेल आईडी का? हाँ, वो निकल सकता है। जैसे हम बात कर रहे थे ना, वो फोरेंसिक में भेजते हैं और इनकम टैक्स पास से ऐसे प्रोविजन से ऐसे आदमी रहते हैं कि वो ये सब निकालता है। वो मतलब डिपेंड्स है, जो भी केस टू केस रहता है कि कितना बड़ा केस है उसके ऊपर। जैसे सारा ट्रांजेक्शन उसका उसे व्हाट्सएप या मोबाइल से ही हो रहा होता है, जी सर तो वो उसके पीछे भी पड़ते हैं और उसमें से भी निकालते हैं ये इन्फॉर्मेशन। जी सर जी सर।
From Sonali Jewelers, the question is, can they come at my house for checking? यस यस ये दो बातें हैं. सर्वे होता है जब, तो सर्वे के दौरान वो सिर्फ बिजनेस प्लेस पर आते हैं. पर जब सर्च होती है, मतलब रेड की बात करें तो इनकम टैक्स रेड तो कहीं पर भी आ सकती है, आपके घर पर भी आ सकती है, और घर पर आते ही है साथ में. बिजनेस प्लेस पर तो आते ही है, साथ में घर पर ही आते हैं. और सिर्फ यही नहीं, मतलब आपके पार्टनर्स के घर पर भी आते हैं, तो एक साथ में ही आते हैं. और सब जगह पर एक साथ एट ए टाइम जाते हैं. वो लोग काफ़ी प्लान करके आते हैं कि सभी जगह पर, जैसे 9 o'clock को स्ट्राइक करना है, तो सिर्फ 9 o'clock को एक साथ में, एक ही साथ में सब लोग वो जगह पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर डिसाइड हुआ. तो आपको मौका नहीं देते. Next question is from Vedant. If laptop is seized and we do not remember the password and forensic department fails to unlock the password, what happens then? हाँ, वो उसके ऊपर है, पर इतना होता नहीं है. वो लोग क्रैक कर पाते हैं. वो लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि वो अनलॉक कर ले. हम सोचे उससे ज्यादा स्मार्टर है. ठीक है सर. गैलेक्सी A9 की तरफ से क्वेश्चन है, रेड पढ़ने के बाद अगर bogus capital if not proved by the assessed and the assessee paid the tax with penalty to the department, then what the status of the share capital in assessed account? अच्छा, मतलब क्या उसके ऊपर हम टैक्स पे कर दे तो फिर तो हमारी इनकम हो गई. अगर हमने टैक्स पे कर दिया और हमने ये बोगस है वो भी एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया, तो या अगर हमने टैक्स पे कर दिया है तो फिर वो हमारी इनकम हो गई, मतलब हमारे कैपिटल से ही जुड़ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है. पर उस केस में नॉर्मली अब जैसे लॉ है उसमें टैक्स का रेट और पेनल्टी मिला के देखे तो हमारे पास कुछ बचता नहीं है. उसको देने के बाद में आज में कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं. जी, ठीक है सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन राम भाई मोदी की तरफ से, कैन वी डिसाइड अप्रूवल आफ्टर द पंचनामा इज मेड? हाँ, वो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम कहेंगे कि अभी मुझे ज्ञात नहीं है, मतलब अभी मुझे मालूम नहीं है, या मुझे थोड़े ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी इस बात पर. तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन में हम लोग समझ नहीं पाते कि क्या जवाब दे. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप ये कह दें कि ये मैं फिर बाद में बता पाऊंगा, अभी मुझे मालूम नहीं है. वो लोग प्रेशर करेंगे आपको कि आपको अभी बताना है, पर ये आपका राइट है कि आप कह सके कि मैं बाद में बताऊं, अभी मुझे. हाँ, वो जैसे केस मिली तो वो सीज करके ले जाते हैं, फिर बाद में आप उसे एक्सप्लेन करो कि ये केस का ये सोर्स है. अगर वो जेन्युइन लगता है तो फिर उसे छोड़ना पड़ेगा. उसका राइट है कि वो जैसे अनडिस्क्लोज समझ के वो ले जाए. वो पहले तो वही करेंगे, जब तक आप एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो वो अनडिस्क्लोज ही माना जाएगा. पर अगर आप बाद में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो, आपके पास अगर दूसरे एविडेंसेस है उसे एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप उसे एट दैट टाइम आप अवॉइड कर सकते हैं. काफ़ी ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं कि जो इमीडिएटली आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते. तो वो रहता है. सर, आपने जो अभी एक क्वेश्चन का आंसर दिया, जो पुराना सोना हमने कम में खरीदा है और अभी हम बड़े ज्यादा भाव में उसको सेल कर रहे हैं, तो उसका जो आपने सॉल्यूशन दिया, तो आप वो एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? हाँ, वो एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं है. एक्चुअली मैं करता हूँ कि ये अकाउंटिंग प्रोसीजर है. आपको 2 पार्ट में अपने जीपी को दिखाना है. वो प्रॉफिट तो रहेगा ही, क्योंकि आपने कम भाव में सोना लिया है, आपके स्टॉक में पड़ा है, और वही आप अब ज़्यादा भाव में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट तो आपका हुआ है, तो आपको प्रॉफिट पे टैक्स तो लगेगा ही. पर मैं ये कहूँगा कि हर साल मतलब आप अपने प्रॉफिट को एक स्तर पर नहीं रख सकते इसी वजह से. तो ये एक्सप्लेन करने के लिए इट इज़ बेटर प्रैक्टिस कि आप 2 पार्ट में अपने प्रॉफिट को डिवाइड कर लें, जीपी को, कि एक ये पार्ट है कि जिस पर सिर्फ रेट के लिए ये मुझे प्रॉफिट हुआ, और ये पोर्शन है जो नॉर्मल मुझे एज ए लेबर या एज ए वैल्यू एडिशन के तौर पर ये मुझे प्राप्त हुआ. तो वैल्यू एडिशन वाला कंसिस्टेंट रहेगा, रेट वाला पार्ट फ्लक्चुएट करता रहेगा. जी, ठीक. सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम केडी अगेन. सर, कस्टमर से हम गोल्ड यूज करने के लिए ले सकते हैं, अगर उसमें हम उसको ज्वेलरी लेबर में डिस्काउंट देंगे,
वो कंडीशन में क्या वो गोल्ड अनसिक्योर्ड लोन में काउंट होती है? आप कस्टमर से भी गोल्ड यूज करने के लिए नहीं ले सकते। फिर दूसरा आपने नेक्स्ट क्या उसमें पूछा? अगर उसमें हम उसको ज्वेलरी लेबर में डिस्काउंट देंगे, वो कंडीशन में क्या वो गोल्ड अनसिक्योर्ड लोन में काउंट हो? हाँ हाँ, वो आप मतलब किसी के पास से भी गोल्ड वैसे यूज करने के लिए नहीं ले सकते, मतलब ये अनसिक्योर्ड लोन ही हो गया, चाहे वो आपका कस्टमर ही क्यों ना हो। जी आप एडवांस गोल्ड ले सकते हो जिसके पास से आप खरीद बेचन करते हो, जी पर वो भी सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन, आपको सब दिखाना पड़ेगा जी कि जैसे मैंने इसके लिए मैंने एडवांस लिया, तो एक ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया, पर कस्टमर के पास से वैसे नहीं ले सकते। ओके। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अजय मांडलिया। डेट के हिसाब से डिजाइन्स विथ हमने कंप्यूटर फोल्डर बना के रखे हैं, जो अकाउंट से मैच नहीं होते तो वो क्या गिना जाएगा? हाँ, तो वो जिसमें भी जितने एक्सेस है वो सारे आपके एडिशंस में जाएंगे। जी जी जाहिर सी बात है, आपको ही समझाना है कि वो कैसे ये एक्सेस नहीं है, जी 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 अकाउंट के साथ मैच करवाना ही पड़ेगा। जी सर, जी सर। सो आई थिंक सर वी शुड रैप अप नाउ। हमने सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है अभी, लाइक मोस्टली वी हैव कवर्ड एवरी क्वेश्चन। जी जी, सो यस दैट्स ट्रू। और टाइम भी सर हमारे पास 3 to 4 मिनट्स हैं। अगर राज भाई अगर कोई क्वेश्चन मुझे दे सकते हैं। यस राज भाई। राज भाई इज वर्किंग ट्रिमेंडसली फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स। वो काफी मेहनत कर रहे हैं। Okay, I have received a question. Sir, a question है, how long is valid of approval voucher from wholesaler? हाँ, अगर आपके और उसके बुक्स में दिखा रहा है, दोनों के बुक्स में, तो उसकी वैलिडिटी वैसे कोई नहीं होती, पर लॉजिकल हम देखें तो 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं, जी क्योंकि जीएसटी में भी हमें देखना है कि वो माल फिर वापस क्यों नहीं गया। जी जी, ठीक है। सर, कृतिन भाई जोशी की तरफ से एक अगला क्वेश्चन है। Secondly, can any other officer or income tax department can re-raid for same period? हाँ, वो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि उसके जैसे गए और फिर वो नेक्स्ट टाइम अनदर अप्रूवल लेके आ सकते हैं। जी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये था कि कोई सेम वाउचर पर, मतलब सेम सेम वारंट पर अगर वो रीरेट कर सकते हैं, मतलब एक बार ऑथोराइज कर दिया, एक बार उसने आपके पास सर्च कर ली, एक बार आपके ऊपर वो स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड कर लिए, जी फिर क्या वो फिर से दूसरे दिन वापस आ सकते हैं? जी, तो वो नहीं कर सकते, सेम ओके, वारंट पर वो दूसरी बार नहीं आ सकते, जी और दूसरी बार वो अनदर वारंट लेके आ सकते हैं। मतलब उसके पास अगर रीजन टू बिलीव है जी कि चलो नेक्स्ट मंथ ही आ जाएंगे, कि अगर आपने एक महीने में कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन किए हैं जो जी कि आईटी की नज़र में सस्पिशियस है, जी तो फिर से आ सकते हैं जी और फिर से आपको पूछ सकते हैं, मतलब दे हैव ऑल राइट कि जी आपके दूसरी बार भी वो रेड करें। जी पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली 2-3 साल तक वो वापस नहीं आते। जी जी तो ये नॉर्मल कंडीशन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में ये भी हो सकता है कि वो फिर से आए। जी। वीवो 1804 की तरफ से सर ये अगला क्वेश्चन है। मेरे पास अनकाउंटेड कैश या गोल्ड मिला जिसका मेरे पास बिल नहीं है, किन महीने पहले से बैंक लोन किया हुआ है, तो मैं ये वही लोन अमाउंट का गोल्ड या कैश है ये बता सकता हूँ? आपको साथ में काफ़ी और चीज़ें देखनी होगी हम्म, कि आप ये बता रहे हो कि मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब ये सोर्स ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट है, कि ये क्या है, जी तो ये आप दिखा सकते हैं कि ये मेरे सोर्स है। जी पर उसके लिए काफ़ी और चीज़ें भी आपको साथ में रखनी होगी, दिखा सकते जी हैं। जी। भरत भाई सोनी की तरफ से सर एक क्वेश्चन है। नीरव भाई, ऑन बुक से हाजिर में स्टॉक ज्यादा है 2 से 5 गुना, तो यूज ऑन बुक में कैसे बढ़ाया जाए? तो भरत भाई, मैं तो आंसर नहीं दे पाऊंगा, मैं हिरेन सर को ही देता हूं कि सर वो आप इसका आंसर दे दे। मुझे लगता है भरत भाई आप मुझे कॉल कीजिएगा। नीरव भाई देंगे तो दिक्कत
हो जाएगा। यस सर प्लीज। ठीक है, नहीं बस उसे भरत भाई को पर्सनली बोलिए, हम बात कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। चंद्रेश भाई धोड़किया, व्हाट कैन यू हैव ट्रबल डूइंग? मुझे अच्छी तरह से ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, राज भाई कैन रिपीट द क्वेश्चन। राज भाई, हाँ सर, चंद्रेश भाई पूछे थे कि व्हाट कैन यू हैव ट्रबल डूइंग मोर मार्केटिंग, अगर हम ज्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? नहीं, सिर्फ मार्केटिंग की वजह से आएगा ऐसा नहीं। हाँ, एक है कि आप उसके ध्यान में जरूर आओगे, पर अगर साथ में आपके बुक्स भी साथ देते हैं आपका, अगर आप प्रॉफिट वगैरह अच्छे से दिखाते हैं तो दिक्कत नहीं है जी, ठीक है सर। सिर्फ मार्केटिंग की वजह से आपके ऊपर रेड है ऐसा नहीं होगा। आप ध्यान में जरूर आओगे, पर आपका साथ में भी कोलोबरेटिव भी देखना पड़ेगा कि साथ में आपके रिटर्न की स्टेटस क्या है, आप क्या कोऑपरेट करते हैं, टैक्स कितना भरते हैं, टीडीएस का क्या करते हैं। तो अगर आपने बुक्स वगैरह में सब कुछ अपने एसेट्स ले लिया है तो फिर टेंशन की कोई बात नहीं है, अपना बिजनेस तो हमें करने का पूरा हक है। जी, ठीक है सर। सो आई थिंक वी विल एंड आवर सेशन हियर सर, इट्स 12:30 और हमने बहुत सारे क्वेश्चन सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लियर किए होंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स के। आई होप एवरीबडी एंजॉयड द सेशन एज लास्ट टाइम। एंड मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप सब यहाँ पे आए और आई होप यू हैव ऑल फाउंड योर सॉल्यूशंस। जो क्वेश्चंस आपके माइंड में थे उसका सर ने आंसर दिया होगा। सर एनी क्लोजिंग वर्ड्स? नहीं बस, और फिर भी कुछ हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी कैन ट्राई टू गिव यू आंसर एज मच एज पॉसिबल। Thank you very much for being participant on this interactive seminar. Thank you very much. Thank you sir.